Good morning to everyone. This is the sum we will do in today's lecture. The following balances appeared in the books of Art Limited on 1/4/2013. Now the debenture redemption fund rupees 60,000 represented by investments of an equal amount, nominal value rupees 75,000. So डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का वैल्यू है 60,000 और किसमें इन्वेस्ट किया है? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड किसमें इन्वेस्ट किया है? it is represented by investments, मतलब जितना डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है उतना ही डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है 60,000 and the value, nominal value is 75,000. The 12% debenture stood at 90,000. Then they say that the company sold required amount of investments at 90% for redemption of rupees 30,000 debentures at a premium of 20% on the above date. So what they say कि कंपनी ने जितना पैसा चाहिए रिडेम्पशन के लिए ऑफ 30,000 डिबेंचर्स एट 20% प्रीमियम, उतना प्राइस में इन्वेस्टमेंट्स जितना अमाउंट चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट सेल किया एंड 90% वैल्यू में investments were sold at 90% value. So let us, what all accounts they want us to prepare? 12% debentures account, 12% debentures account. Then क्या चाहिए? Debenture redemption fund account. फिर क्या चाहिए? Debenture redemption investment account. देन क्या चाहिए? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. These are the accounts asked in the questions here. ये सब अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने बोला है. तो लेट अस स्टार्ट इट. डेट चाहिए हमें, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर amount. Let me adjust the date. Let me adjust the date. So, date, particulars, rupees, date, particulars, rupees. So, same way, ये कॉपी करके so we have prepared all the accounts. So all the accounts have been prepared. Now we can start with the sum. The topic is
See, this is debenture redemption of debentures, and we are started with sinking fund. So sinking fund is also known as debenture redemption fund. So जितना हम लोग फंड में पैसा ट्रांसफर करते हैं, इक्विवेलेंट टू द सेम अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं. इन द लास्ट टू लास्ट lecture, I have explained the journal entries. If you have missed those lecture, you can watch those lectures in my YouTube channel. All the lectures are recorded in the YouTube channel. You can go there and watch the previous lectures. So now, सबसे पहला अकाउंट 12% डिबेंचर. सो नाउ सी, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में 60,000 है. डिबेंचर रिडेम्पशन फंड is a liability, and what is the date they have given? Date सब जगह पे 1/4/2013 है. और हमें क्या करना है? बाई लाइबिलिटी रहेगा ना डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, बाई बैलेंस बॉट डाउन. दिस इज सॉरी, हाउ मच इज द अमाउंट? 60,000. कितना है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड? 60,000. 12% डिबेंचर, ये भी लाइबिलिटी. और जितना, एक मिनट, हाँ, जितना डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में पैसा होगा, इक्विवेलेंट टू द सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी होगा. 1/4/2013 इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज अ असेट. सो असेट मतलब डेबिट बैलेंस 60,000. See, debenture redemption fund is a liability, and debenture redemption debenture redemption fund investment या debenture redemption रिजर्व इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन में ऐसे बोला है, क्वेश्चन में दे हैव सेड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बोलो तो जो क्वेश्चन में बोला है हमें वही नाम देना पड़ेगा. सो वो इट इज अ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मीन्स असेट, asset means debit balance. So now what we will do, what else is given? 12% debenture 90,000. The 12% debenture is a liability. Debenture is a liability. So balance किधर रहेगा? By balance brought down 90,000. इसके बाद दे से द कंपनी सोल्ड all their company sold, not all, but company sold required amount of investment. The company sold required amount of investment at 90% for redemption of 30,000 debentures at a premium of 20% on the above date. So the company sold required amount. of कितना amount required है हमें देखना पड़ेगा. The company sold required amount of investment at 90% for redemption of rupees 30,000 debentures at a premium of 20% on the above date. So जो above date है इतना ही क्वेश्चन में दिया है. So जो above date है, यहाँ ये डेट पे कंपनी को क्या करना है? कंपनी बोलती what the company want to do, it want to sell required amount of investment at 90% for redemption of 30,000 debenture at a premium of 20%. So यहाँ पे how much amount is amount to be repaid, on redemption. Amount to be repaid कितना है? 30,000 plus 20% premium. तो 20%
of 30,000 is how much? 30,000 का 20% premium, which is equal to how much? Which is equal to 30,000 प्लस 20% कितना होगा 30,000 का? 6,000, विच इज इक्वल टू 36,000। तो हमें रीपे करने के लिए 36,000 चाहिए। इसमें डिबेंचर का 30,000 है और 20% प्रीमियम है। डिबेंचर का 30,000 है एंड 20% इज द प्रीमियम। सो ये करने के लिए व्हाट वी require to sell the redemption. So amount of investment required to be sold. हमें कितना अमाउंट चाहिए? हमें चाहिए 36,000। हमें कितना चाहिए? 36,000। वी हैव टू पे 36,000। तो हमें देखना पड़ेगा 36,000 हमें चाहिए रिडेम्पशन के लिए। जितना रीपे करना है उतना हमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट 36,000 सेल करना है तो अगर ये 36,000 90% है, बिकॉज हम लोग क्या करने वाले हैं 90% में सेल करने वाले हैं। तो ये मैं नीचे करती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें ये जो 36,000 है ये 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर ये 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो 100% कितना रहेगा? हाउ मच विल 100% बी? कैन एनीवन टेल मी? तो यहाँ पे लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। अगर ये 36,000 ये 90 है तो 100 कितना रहेगा? डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई, डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेल मी 100% कितना रहेगा? 36,000 into 100 divide by 90, how much this will be? 40,000। या तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया समझ में आया? हियर आई विल राइट द फॉर्मूला। 36,000 into 100 डिवाइड बाई 90 किया तो हमें ये मिला 40,000। मतलब हमें 75,000, देखो क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू इज 75,000। तो उसमें से हमें कितना कंपनी सोल्ड? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 90%। जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है रिडेम्पशन में वो हमने सेल किया। हमें रिक्वायर्ड है 30,000 प्लस 20% प्रीमियम, दैट इज हमें रिक्वायर्ड है 36,000। तो ये 36,000 हमने एट 90% सेल किया। तो 100% नॉमिनल वैल्यू कितना है? 40,000। उसमें सॉरी नॉमिनल वैल्यू कितना है? 75,000। उसमें से हमने 40,000 सेल कर दिया। हमने 40,000 सेल कर दिया, बट हमें पैसा कितना मिलेगा उस पर? हमें पैसा मिलेगा 36,000। सो जरा जाते हैं। सो सेम डेट पे हम जब इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, अब जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो असेट कम होगा। असेट मतलब डेबिट बैलेंस कम होगा, मतलब क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। सेल करेंगे तो क्या मिलेगा? कैश बैंक अकाउंट। कितने में सेल कर रहे? 40,000 का 90%, which will be equal to 36,000।
दिस इज इक्वल टू 36,000. तो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर्स है बाई बैलेंस बॉट डाउन 90,000. इसमें से हम कितना अभी रिडीम करने वाले, पूरा 90,000 रिडीम करेंगे तो डिबेंचर कम होगा, रिडीम करेंगे तो डिबेंचर कम होगा, रिडीम करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर कम होगा, डिबेंचर कम होगा. और डिबेंचर कम होगा तो डेबिट करना पड़ेगा टू हम लोग को ड्यू की एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट. हम कितना डिबेंचर सेल कर रहे, 30,000. तो 90,000 में से 30,000 का डिबेंचर सेल किया, तो इधर टू डिबेंचर होल्डर इधर आएगा बाई व्हाट इज द अकाउंट, कितना परसेंट डिबेंचर है, 12%. सो बाई 12% डिबेंचर अकाउंट. 30,000. ना एक चीज हमने यहाँ पे जब भी कुछ भी सेल करते हैं, हमने 40,000 वर्थ का जो डिबेंचर है वो 90% में सेल किया, 36,000. अभी हमें एक और चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा. दिस इज आवर फर्स्ट वन. तो नाउ लेट अस फाइंड द second one, that is profit or loss on sale of investment. तो नेक्स्ट यहाँ इसमें लिखेंगे इन्वेस्टमेंट सेल करके कितना नेट प्रोसीड्स मिल रहा है. नेट प्रोसीड भी बोल सकते हैं, सेल प्रोसीड्स भी बोल सकते हैं. हाउ मच सेल प्रोसीड्स वी गेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो इसको बोल सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कितना मिला, कितना अमाउंट मिला इन्वेस्टमेंट सेल करके, 36,000. तो इसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड. इन्वेस्टमेंट सोल्ड जो हमने किया उसका कॉस्ट क्या है, उसके लिए ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे. देखो हमारा जो 60,000 है, 60,000 कॉस्ट है, तो उसका फेस वैल्यू है 75,000. 60,000 इज द हमारा कॉस्ट वैल्यू. देखो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन का फंड में हमने खर्चा किया 60,000, और उसका नॉमिनल वैल्यू है 75,000. तो 60,000 उसका नॉमिनल वैल्यू है 75,000. तो अभी हमें पता है, नॉमिनल वैल्यू पता है कि 40,000 है, नॉमिनल वैल्यू हमें पता है कि वो 40,000 है. तो कॉस्ट उसका कितना रहेगा, अगर हम
क्या कर रहे हैं हम, 60,000 हमारे पास टोटल कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का और उसका नॉमिनल वैल्यू है 75,000। तो अब यहाँ पे हम लोग 40,000 नॉमिनल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, तो वो नॉमिनल वैल्यू का कॉस्ट कितना रहेगा, वो नॉमिनल वैल्यू का कॉस्ट कितना रहेगा, देखो 60,000 इज द कॉस्ट। इफ यू वांट आई कैन राइट हियर, ये कॉस्ट है और ये नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू है। तो हमने 40,000 नॉमिनल वैल्यू सेल किया, तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 60,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 75,000, कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 60,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाय कितना, 75,000। तो हमें आंसर आएगा 32,000। तभी हमें आंसर आएगा 32,000। आंसर आया 32,000, मतलब 40,000 का को हमने तो 75,000 का चीज 60,000 में खरीदा, तो अगर हम उसमें से 40,000 का चीज बेच रहे हैं 36,000 में, तो उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट है 32,000। तो हाउ व्हाट विल बी, दिस इज द, यहाँ पे हमने कॉस्ट फाइंड आउट किया। तो अभी मुझे बताओ ये प्रॉफिट है क्या लॉस है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 36,000 एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज 32,000, मतलब दिस इज अ प्रॉफिट, दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 4,000। तो प्रॉफिट है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 1/4/2013। प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, हमें किसको इफेक्ट देना है, DRR को, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, या DRF यहाँ पे यूज किया है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, कितना 4,000। तो ये अकाउंट को हम बंद करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा उतना इन्वेस्टमेंट अभी भी बचा हुआ है सेल करने के लिए, हमने पार्टली इन्वेस्टमेंट सेल किया है, तो कितना अभी भी इन्वेस्टमेंट बचा है, 64,000 माइनस 36,000 दैट इज 28,000। इसको बोलेंगे हम 1/4/2013 को दिस इज बाय बैलेंस कैरीड डाउन 28,000। तो यहाँ पे DRF आए 2 DRF, तो यहाँ पे आएगा इसका ऑपोजिट इफेक्ट आ गया, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में आएगा, सेम डेट लिया, यहाँ पे एक ही डेट दिया हुआ है, वही डेट में अज्यूम करने बोला है सारा ट्रांजैक्शंस। सो दिस विल बी बाय डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, DRF, फुल नहीं लिख रही हूँ मैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,000, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,000, दिस इज डन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये इन्वेस्ट यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट को भी बंद कर देते। हमने क्या किया, 90,000 में, इधर 90,000 आ रहा है, 30,000 सेल कर दिया, 30,000 सेल नहीं, डिबेंचर होल्डर को रीपे कर दिया, तो कितना रीपे करना बाकी है, 60,000। तो सेम इधर लिखेंगे 1/4
2013 को टू बैलेंस कैरीड डाउन 60,000। अब डिबेंचर होल्डर को हम लोग ये भी देने वाले 30,000 और प्रीमियम भी देने वाले। हमें प्रीमियम भी देना, यही डेट पे हमें डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम भी देना है बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम है? 30,000 का 20% प्रीमियम है, तो कितना होते, कितना प्रीमियम देना है हमें? 6,000 प्रीमियम भी पे करना है। मतलब हम डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर का पैसा देंगे, बिकॉज 30 आउट ऑफ 90,000 दे हैव टोल्ड ओनली 30,000 हैज टू बी रीपेड, एंड वी विल ऑल्सो बी गिविंग 6,000 का प्रीमियम 20%। तो ये प्रीमियम के लिए हम कहाँ से पैसा निकालेंगे, कहाँ से पैसा यूज करेंगे? हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में पैसा है, हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में पैसा है, तो ये रिजर्व है, इससे हम प्रोविजन करेंगे। तो 1/4/2013 हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड से पैसा यूज करेंगे। तो इधर भी लिखेंगे पैसा यूज किस, रिजर्व कम हुआ तो डेबिट में लिखना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000। मतलब हमें 30,000 एंड 6,000 हमने क्या किया? 30,000 का डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना है, तो वो 6,000 के लिए हमने यहाँ पे यूज किया। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अब क्या करेंगे? ये 36,000 है, डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। 1/4/2013 को पे करेंगे, तो 2 कैश बैंक अकाउंट कितना पे करना है? 36,000। तो ये अकाउंट टैली हो जाएगा, ये अकाउंट टैली हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सिर्फ क्या बाकी है? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड टैली होना बाकी है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जितना रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में बैलेंस है, उतना ही फंड में भी बैलेंस होना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस इधर है, क्लोजिंग बैलेंस किधर रहेगा? ऑपोजिट साइड में। तो हमें सेम डेट में अज्यूम करना है, तो 1/4/2013 को यहाँ पे हमें कितना बैलेंस चाहिए? टू बैलेंस कैरीड डाउन। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही फंड में भी बैलेंस होगा। 28,000 इन्वेस्टमेंट में बैलेंस है 28,000। मतलब अभी हमारे पास कितना, जितना भी हम फंड में पैसा डालते हैं उतना हम इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है? 28,000। तो फंड में भी हम 28,000 ही रखेंगे, और जो ऊपर का अमाउंट है कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एनी आइडिया? जो ऊपर का अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? देखो यहाँ पे तो सिर्फ कितना आ रहा है? 34,000 आ रहा है, 28 + 6 34,000 आ रहा है, बट दिस इज 64,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, वो कहाँ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर जो है, जो ऊपर का अमाउंट है, डीआरआर में जो भी ऊपर का अमाउंट है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल
रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर इज कितना अमाउंट होगा, देखो 34 से 64,000 माइनस करो तो यू विल गेट 30,000. This 30,000 will be transferred to 30,000 will be transferred to general reserve. So with this sum is done. Thank you very much everyone.